مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ متحد اپوزیشن تو جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ قدم بڑھائیں اور اس ملک کو ترقی یافتہ اور اس کی پہچان کو اونچا لے کے جائیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین گروپ کے جو ممبران ہیں وہ پچھلے 1.5 سال سے حکومت میں رہ کر اپوزیشن کا کردار ادا، اور کس بات پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین جس کا پی ٹی آئی کے اوپر احسانات بے شمار ہیں، ان کی وفاداری پر، ان کی دن رات کی محنت پر، ان کی مخلصی پر نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ایک جھوٹا مقدمہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ بنا کر نہ صرف ان پر ایف آئی آر دی گئی بلکہ ان کے بیوی بچوں پر تک ایف آئی آر دی گئی۔ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کا احتجاج کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت اور جہانگیر خان ترین کی ایمانداری کا ثبوت یہ ہوا کہ شہزاد اکبر جو کہ نیب کا ایڈوائزر تھا اس کو پی ٹی آئی کو نکالنا پڑا اور اس پر بے شمار الزامات لگے۔ اس کے بعد آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نااہل وزیر اعلیٰ بنایا گیا جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا۔ جو شخص عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اسی کی ڈویژن میں سے 6 ایم این اے اس سے منحرف ہو گئے۔ یہ کارکردگی اس وزیر اعلیٰ کی تھی اور 8 کلب فار سیل تھا۔ جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سودا خرید سکتا تھا۔ ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے، یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے، اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آج پھر جہانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا عہد کر رہا ہے، اس چیز کا ضامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمانداری سے، مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں، میرے لیڈر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شہباز صاحب، یہ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کی خدمت کریں گے۔ اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے، اس صوبے کی ترقی کریں گے، ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اس میں ان کی بھرپور مدد کرے گا، ان کا ساتھ دے گا اور نشاندہی کرے گا۔ جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آخر میں جہانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر، ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام ممبران نے لبیک کہا بلکہ میاں حمزہ شہباز صاحب کو بھرپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بہت شکریہ۔ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اقتدار میں کتنا شیئر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے ترین گروپ کے ساتھ؟ ترین گروپ پہلے بات کر لینا، پہلے بات کر لیں اس کے بعد پھر ہم سوال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जहांगीर तरीन साहब का और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। मेरी आज दूसरी मीटिंग है तरीन ग्रुप से और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरी क़यादत पर नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। और यकीनन एक मकसद है, जिस तरह मेरे भाई नुमान ने कहा है कि इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया गया। करप्शन के रेट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में तय होते हैं, दर्जनों तबादले रोज होते हैं। और नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, पुराने पाकिस्तान को भी इन्होंने अपनी नाअहली और करप्शन के नीचे दफन कर दिया। तो मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में इंशाअल्लाह पूरी कर चुकी है और एक खुशहाल पाकिस्तान की खातिर आवाम के घरों में आज बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं। बच्चे रात को दूध के लिए बिलखते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना आता है, पैनाडॉल नापैद हो जाती है और फिर मौसूफ कहते हैं कि ये माफिया है। माफिया तो आप खुद हैं, जो 4 सालों में जो आपने आवाम का खून चूस लिया, तो लोगों को बेघर किया, अपने बनी गाला के महल को आपने रेगुलराइज करा लिया। कौन सा नया पाकिस्तान है, कौन से रियासत मदीना की बात करते हैं? तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अपने इन साथियों की मदद से हम इस सूबे को दोबारा से तरक्की की डगर पर डालेंगे। और शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों तहरीक जो है कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह हमारा मुतमईन नजर जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। साहब ये बता दीजिए कि हमजा साहब ये बताइए कि तरीन ग्रुप के साथ क्या तय हुआ है, इक़्तिदार में इनको क्या शेयर मिलेगा? मेरा ख्याल है कि सियासी लोग हैं, इस पे अगर हम आजाद हैसियत में हमारा जी। कोई डील नहीं है। और अब मैं जितने दोस्त खड़े, हम इस बात को हल्फन कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने न डिस्कस किया है, न हमने रखा। ये तरीन साहब और हमजा साहब जाने, मैं मतलब हमारे खुद गवाह हैं कि हमारे किसी दोस्त ने कोई मुतालबा किसी सीट के लिए नहीं किया। साहब आपके पास 19 मेंबर थे, आज आपके पास 16 मेंबर बैठे हैं। 3 लोग जो उधर गए हैं वो आएंगे आपके पास या वो माइनस कर दिए जाएंगे? वो मियां साहब के पास पहुंच चुके हैं। सर ये बताइए काइंडली कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं पंजाब में और उधर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्शन आप पहले समझ रहे थे कि 2 से 3 माह बाद कर दिए जाएंगे, अगली इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, अब ये पूरा मुकर्रर वक्त पे होंगे इलेक्शन अगर आप वैसे भी सीएम हो जाते हैं? देखें, अपना जो है ये मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, मैंगल साहब हैं, एमक्यूएम है, हमारे ये साथी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूं, तरीन ग्रुप है। इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला मामला तय करेंगे। लेकिन जो मोटी बात आपको बताना, बुनियादी बात, कि हम इस जालिम हुकूमत से जिसने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, आईसीयू में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। ऐन अवामी उमंगों के तहत अवाम को जाके पूछें, गली के नुक्कड़ पर जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, झोलियां उठाकर लोग बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहां पर भी अपने साथियों को कह चुका हूं, अपनी जमात में भी कह चुका हूं कि आज पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान बनेगा, लुटे पुटे काफिले आए थे, आज उनकी कुर्बानी इस बात का तकाजा करती है कि हम अवाम की तरफ देखें, अवाम के हकूक को हल करने के लिए हम सोचें। और क़यामत वाले दिन ये तरीन ग्रुप भी और मैं भी अल्लाह को जवाब दे होंगे कि जब अल्लाह की मखलूक भूखी थी, बेरोजगार थी, हमने क्या किरदार अदा किया। ये वजारत आला, ये
वजारत उज़्मा यहीं रह जानी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो इंशाअल्लाह जी ब्रेकअप भी दे दीजिएगा। आपके पास एक टोटल 16 मिला के कितने हो गए? ये ब्रेकअप सरप्राइज देने दे, एक बड़ा सरप्राइज आएगा। मैं इमरान नियाज़ी की तरह झूठा सरप्राइज नहीं दूंगा। इंशाल्लाह जिस दिन तरीके अदम एतमाद अल्लाह के फजल से भारी अक्सर से कामयाब होगी, वो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। आखिरी सवाल, हमारा इजलास शुरू हो चुका है। ये बताइएगा कि कुछ गिरफ्तारियों की बातें भी की जा रही हैं जी, कि वो केसेस तैयार हैं, और दूसरा सईद अकबर निवानी साहब से सवाल है, डिफेक्शन क्लॉज का क्या बनेगा? 2 सवाल। वो कुछ राज की बातें हैं, वो हम बाद में बताएंगे। गिरफ्तारी की बात की, यार अब किसको गिरफ्तार करना है? अपना जो है पूरी मुस्लिम लीग नून को तो गिरफ्तार कर लिया आपने। इंतकाम के अंदर गिरफ्तार रहे 4 साल, अवाम से इंतकाम लिया। खुदा का खौफ करें, अब आपकी अवामी अदालत में पेशी का वक्त आ गया। नाजी साहब तैयारी करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ तरीन ग्रुप के अराकीन बैठे थे। तरीन ग्रुप ने पाकिस्तान में अदम एतमाद जो मौखिर हो चुकी है, अब नए वजीर आला का इंतखाब होना है, तो उस वजीर आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज को तरीन ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, पंजाब की सियासत का ही अहवाल आपको बताएंगे। पंजाब असेंबली में जोड़ तोड़ जारी है। इजलास 4 घंटे बाद शुरू हुआ और साथ ही कल तक मुलतवी कर दिया गया। अबूरी वजीर आला पंजाब